Hi everyone, this is Ankit and you're watching Tech Life and Beyond. तो आज का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट अभी 10th क्लास पास किया है, बीट फ्रॉम स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और ओपन स्कूलिंग. The intent behind making this video is basically to help them, motivate them, guide them in the right direction because मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अब क्या करूँ. ठीक है, मैंने 10th क्लास पास कर लिया बट अब इसके आगे क्या. तो वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सबको. बी इट किसी ने 60% लाए हैं, 50, 80, 90, कितने भी परसेंटेज हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. You guys have put in your efforts for years and maybe the last year so much, and you guys need and deserve to be congratulated. And I must say that you should enjoy and be happy about whatever marks you have got. To start with my video, the biggest confusion or the first confusion you might be having कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ. शुड आई गो फॉर साइंस, शुड आई गो फॉर कॉमर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज एनालाइज योर इंटरेस्ट कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एंड देन यू शुड चूज द स्ट्रीम. नॉट बेस्ड ऑन मार्क्स, यू शुड रादर बी चूजिंग इट बेस्ड ऑन वॉट आर योर इंटरेस्ट एरियाज. से फॉर एग्जाम्पल यू लाइक स्टडिंग फिजिक्स, then you might be going for PCM, right? What if you like studying computers? So go for any stream with computer option, right? As in subject option, right? Similarly, if you are somebody who likes doing a lot of calculations, statistics, and you like studying economics and things like that, so you should be going for commerce. Similarly, if you like a lot of arts, in terms of you like political science, language, literature, history, so you should be going for arts. Never make a decision based on the fact that you have got these many marks and मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं तो मुझे साइंस लेना चाहिए, मेरे मार्क्स कम है तो मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, या मेरे मार्क्स बहुत कम है तो मुझे आर्ट्स लेना चाहिए. ऐसा नहीं है. यू शुड ऑलवेज बी टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन what are your interest areas, what are the subjects that actually make you interested, or what subjects you want to take up, right? Another point that I like to mention is do not judge yourself by your marks. ठीक है, तुम्हारे 60%, 70% जितने भी परसेंटेज आए हैं, इवन 90% भी आए हैं, डू नॉट स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ. डू नॉट स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ बेस्ड ऑन मार्क्स. सो बिकॉज मार्क्स डजंट टेल एवरीथिंग. तुम्हारे मार्क्स 70% हो सकते हैं बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वीक हैं. तुम्हारे मार्क्स 90% हो सकते हैं बट हो सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की हो, और बट तुम्हें पता है कि कुछ सब्जेक्ट में तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं या कुछ भी ऐसा. तो मार्क्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का और जज करने के खुद को. तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि दीज आर द सब्जेक्ट्स आई लव, दीज आर द सब्जेक्ट्स वेयर आई स्ट्रगल, एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स आई एम एवरेज इन. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. अपने रिजल्ट को जज करो, एनालाइज करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज करो, बट डू नॉट स्टार्ट जजिंग योर कैपेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन योर मार्क्स. जैसे वंस योर रिजल्ट्स आर आउट, सिट फॉर अ डे और टू, analyze that okay, these are my marks in different subjects and these are the areas where I can improve, and these are the areas I should be improving in next 2 years. तो 11th और 12th में मुझे इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, वो अच्छा होगा. And why I am saying that marks doesn't matter for a particular stream or something, because times have changed. There are so many different career options nowadays, and there are so many newer things coming into the market that you never know what stream you might be opting for, and it will take you somewhere where even you would not have thought initially. तो ऐसे बहुत सारे career options हैं जहाँ पे कि even marks are not at all required, because even specifically talking about cyber security, there are people who are just 12th passed and they are doing a lot of work related to cyber security. Or at the same time, there are a lot of kids who are doing coding and all, and they are still in school. So reason behind saying this is it is good to study, it is good to gain knowledge, but do not gain that knowledge for marks, right? And also these marks should not be a factor for deciding your stream. Secondly, it's good you have got x marks, x percentage of marks so far, but it's done. Like 10th क्लास हो गया है, अब आपको 11th और 12th में जाना है. सो यू शुड नो दैट द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स नाउ.
11th एंड 12th क्लास इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, सिलेबस वास्ट होगा। तो डरना नहीं है, उसके लिए प्लान करना है, उसके लिए ये सोचना है कि मैं इसको कैसे अप्रोच करने वाला हूँ अगले 2 साल। और अगली और सबसे ज़रूरी चीज़, डू नॉट फॉल फॉर पीयर और सोशल प्रेशर एट ऑल। डू नॉट गेट इन टू दैट डिस्कशन कि यार मेरा वो दोस्त है उसके तो मेरे से इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। डू नॉट फॉल फॉर दोज थिंग्स जहाँ पे कि पेरेंट्स या आपके खुद के रिलेटिव्स कहेंगे कि यार उनके बच्चे के तो इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तुम्हारे मार्क्स हैं, जो उसके मार्क्स हैं वो उसके मार्क्स हैं। जो तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा पोटेंशियल है, वो तुमको तुम्हारे करियर में आगे ले जाएगा। बिहाइंड द सेम लॉजिक देर आई वोंट गिव यू बिग नेम्स कि उनके मार्क्स कम थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। बल्कि मैं यही कहूँगा कि इवन आई एम लाइक यू, आई एम समबडी हु हैज़ गॉट लाइक 78% इन 10th, बट आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर एंड रिसर्च एंड फाइंड कि क्या करना चाहिए मुझे आगे, क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या करना चाहिए, क्या पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें ही मुझे लाइफ में आगे लेकर के गई हैं। तो पढ़ाई करो, कोशिश पूरी करो, बट नेवर फॉल फॉर मार्क्स और ये सारा प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड मत करो, बिकॉज दिस प्रेशर इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। जो अगली चीज़ है वो ये है, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस। डू नॉट ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तुम्हारे कोई भैया हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। तुम्हारे कोई साथ में कोई रहता है जिसको कॉमर्स पसंद है, तुम्हारे कोई फ्रेंड जिसको आर्ट्स पसंद है तो वो आर्ट्स ले रहा है और वो ये करेगा तो मैं भी वो कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। हमेशा ये देखना है कि मुझे क्या इंटरेस्ट करता है, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मेरे क्या करियर एस्पिरेशंस हैं, ना कि किसी और के। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस होने के बजाय एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, आस्क डिफरेंट पीपल कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया था। डिस्कस करो, पूछो उनसे कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनकी स्ट्रीम में जो वो अभी कर रहे हैं। बहुत सारा सोशल मीडिया एक्सेस है तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको यूज़ करो। मे बी लिंक्डइन पे भी अकाउंट बनाओ और उस पर उन लोगों को खोजो। सपोज यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, सपोज यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ऐसे लोगों को खोजो और उनसे वो सवाल पूछो कि आई वांट टू बी दिस, व्हाट शुड आई बी डूइंग एट दिस एज और एट दिस करियर पॉइंट। तो वो तुम्हें अच्छा गाइड करेंगे, रादर देन कि तुम्हारे पास पड़ोस के लोग या फिर वो लोग जो तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता होगा सक्सेसफुल हैं, बट तुम्हें नहीं पता कि उनके लिए कितनी स्ट्रगल रही है। तुम्हें नहीं पता कि वो किस चीज़ में अच्छे थे और तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो इसीलिए जितना ज़्यादा बात करोगे, जानने की कोशिश करोगे, वो चीज़ तुम्हें उतना ज़्यादा आगे ले जाएगी और हेल्प करेगी। अगली चीज़, अर्ली स्टेप्स। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक अर्ली स्टेप्स। वाई आई से दिस, टाइम्स हैव चेंज्ड। सो जो डिसीजन आप 12th के बाद लेते थे कि मुझे करियर ऑप्शन क्या लेना है, वो डिसीजन शायद अब लेना पड़ता है। उसका एक रीज़न है। सपोज यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट टू गो इनटू मेडिकल्स, यू शुड बी प्रिपेयरिंग इन क्लास 11th एंड 12th। तो वो डिसीजन अगर आज लोगे तो तुम्हारे पास टाइम है कि इन 2 साल में तुम इस टाइम को यूटिलाइज करके प्रिपरेशन करोगे, रादर देन कि 12th के बाद ये सोचने की कि यार मेरा 12th का एग्जाम हो गया अब मैं क्या करूं। तो ऑलवेज टेक एन अर्ली डिसीजन। अभी सोचो कि तुम्हें 11th 12th में क्या लेना चाहिए ताकि तुम 12th के बाद क्या कर पाओ। सो गाइज, just to help you in that, I'll be creating more videos in this educational series, एंड ऑल्सो उसमें कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो एक होगा जिसमें कि मैं करियर ऑप्शंस की बात करूंगा, 12th के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं। एंड I'll suggest you guys to be connected. I also have a Facebook page. Initially it used to be named as Education 360 and now it is named by my channel name, Ankit Giri Tech Life and Beyond. So उस पर कनेक्ट करो मुझसे, अपने कमेंट्स ड्रॉप करो इस वीडियो में उस पेज पे, एंड ट्राई एंड रीच आउट टू मी। आई एम अवेलेबल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। तुम्हें डाउट्स हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो, इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस, यू आर फीलिंग डेवास्टेटेड, यार मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। सो टू गेट यू आउट ऑफ ऑल दोज फीलिंग्स, देर आर पीपल you can rely on people who are around you. You can also rely on me. You can always share what you are going through my social channels, and I'll always try and help you in whichever way possible.
हाँ, अगर तुम्हारे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट वीक एक यूट्यूब लाइव कर सकता हूँ, मे बी संडे को, जिसमें कि क्वेश्चंस तुम लाइव आकर के पूछ सकते हो, फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, इन डेप्थ भी हम बात कर सकते हैं कि किस बेसिस पे करियर या फिर अभी स्ट्रीम का डिसीजन लेना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए। बट एक लास्ट सजेशन मेरे साइड से गाइस, whenever you are choosing your subjects, choose wisely. Why I say choose wisely is because suppose you are selecting science and you are going with PCM and you have to take a choice for the fourth and fifth subject. So always keep in mind कि एक अपना करियर ऑप्शन रखो पर एक सेकेंडरी करियर ऑप्शन भी रखो. Like for example, if you want to go and attempt NDA, you want to get into defense forces, तो तुम सारे सब्जेक्ट इस बेसिस पे मत ले लेना कि मैं एनडीए क्लियर करने वाला हूँ तो मैं पीसीएम भी लेकर के पढ़ाई करता हूँ. नहीं, वो सही डिसीजन नहीं होगा. उसका रीजन ये है कि जस्ट इन केस अगर तुम एनडीए में नहीं जा पाते तो तुम्हारा सेकंड करियर ऑप्शन क्या है. से फॉर एग्जांपल सेकंड करियर ऑप्शन तुम्हारा इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस एज द फोर्थ ऑप्शन would be a better thing than biology, right? Because biology in itself is a major subject and you should be choosing it only when you are interested in taking biology. Then you should be taking biology if you want to get into medicals, if you want to study biology more और इन फ्यूचर तो डेफिनेटली लो. बट हमेशा दो करियर ऑप्शन लेके चलना, एक प्राइमरी ऑप्शन जिसपे पूरा एफर्ट लगाओ, एक फॉलोवर ऑप्शन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मेरे से ये नहीं हो पाया तो दूसरा ऑप्शन मैं क्या करूंगा. तो गाइज आई होप यू मस्ट हैव लाइक the video and stay tuned for more content to come. There will be more videos in this series, and just that you should not be missing any video of this series. Subscribe to the channel and वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने ऐसे फ्रेंड्स, अपने ऐसे पीयर्स, अपने अगर आप पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, तो आप अपने बच्चों को शेयर करिए, या फिर अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स के बच्चे हैं, उनको आप शेयर करिए कि ऐसा कुछ है जो कि तुम देखो, तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा, आइडिया मिलेगा. एंड देन वो फेसबुक लाइव या फिर यूट्यूब लाइव में आकर के अपने क्वेश्चंस पूछें. मैं कोशिश करूंगा ऐसे और फर्दर वीडियोस बनाने की, और डेफिनेटली ऐसे वीडियोस भी होंगे इस सीरीज में. व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इफ यू टेक कंप्यूटर साइंस, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस if you go ahead from this and you choose things like you want to get into IT, you want to get into cyber security. So I'll be making those videos as well. So till then guys, take care and bye.